میں اپنے ہسبینڈ کے پاس رہنا چاہتی ہوں, اپنے والدین کے پاس بالکل نہیں جانا چاہتی ہوں. کیا ریزن ہے بیٹا؟ بس مجھے اپنے ہسبینڈ کے پاس رہنا ہے, وہاں نہیں جانا ان کے پاس, نہ ہی ان سے ملنا ہے. اچھا, آپ والد صاحب کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں, والدین پیرنٹس کے پاس, دونوں کے پاس نہیں جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو دعا کی والدہ نے بتائی ہیں, دعا کی نانی نے بتائی ہیں, اور ان باتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو اس وقت آپ کو بہت سے یوٹیوبرز بتا رہے ہیں. کبھی کوئی پھپھو لے آتا ہے, کبھی کوئی خالہ لے آتا ہے, کبھی کوئی چاچا لے آتا ہے, تو کبھی کوئی دوست لے آتا ہے, اس کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے, کبھی اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل فیک ہے, اور دعا کی کوئی ایسی دوست نہیں ہے جو لاہور میں تھی جس نے آپ کے اس کے بارے میں باتیں بتائی ہوں, یا کوئی ایسی ٹیچر نہیں تھی نہ دعا کی نہ ظہیر کی جو سامنے آئی ہے. میں نے ساری چیزیں دیکھیں, آپ تک معلومات جب میں پہنچاتی ہوں اس کے بہت سے سورسز ہوتے ہیں. وہ سورسز یوٹیوب کے چینلز بھی ہوتے ہیں جس میں بہت سے لوگ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے ہم پروگرام دیکھتے ہیں تو میں اپنی ٹیم کے ذمہ لگاتی ہوں. میرے بہت سے ساتھی بھائی ہیں, جب ہم نے 16 سال اسی نیوز کی دنیا میں بہت کام کیا ہے, دنیا نیوز, ایکسپریس, ہر جگہ پہ کام کیا ہے, وہ جو رپورٹرز ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں ان سے پہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں, اور ہم لوگ چیزوں کو جب کنفرم کرتے ہیں تو پھر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو خبر دیتی ہوں. اور یہی وجہ الحمدللہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور کبھی بھی کوئی سوشل ایشو کے اوپر خبر ہوتی ہے تو الحمدللہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو کنفرم کرنا ہوتا ہے تو ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے اس کا مجھے پھل ملا ہے. تو پہلی بات, وہ لوگ جو بٹھا کر مختلف لوگوں کو دکھا رہے ہیں, اور پھر کئی دفعہ ایسی عجیب سی باتیں, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے یوٹیوب چینلز کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, میری ٹیم مانیٹر کرتی ہے, وہ مجھے بلکہ نکال کے بتاتے ہیں کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بہت سے یوٹیوبرز بیٹھ کے دعا زہرا کی سائڈ لے رہے ہیں, کہتے ہیں ہم مورلی اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں, ایک تو مورلی ایتھیکلی اس کے ساتھ ضرور ہے, لیکن ایک اور چیز بھی ہے, وہ چیز ہے صحیح چیز. میں نے سنا وکیل صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا, اور میں ان کے خلاف یہ کروں گا وہ کروں گا. اور پھر یوٹیوبرز نے, جس نے ویڈیو بنائی اس نے کیپشن بھی لگایا کہ یوٹیوبرز کی شامت آنے والی ہے. تو بڑی ہی احترام کے ساتھ میں ان وکیل صاحب سے کہوں گی آپ بالکل شوق سے کرائیے. آپ بھی یہیں پر ہیں, ہم بھی یہیں پر ہیں, اور ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو بالکل ہماری پکڑ ہونی چاہیے. ہم تو یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے نہ اس کے پاس اپنی کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھا, نہ اس کا کوئی ولی اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, اور ہم مورلی ایتھیکلی آپ کو غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل غلط کیا. اسے صرف میں نہیں سپورٹ کرتی, میں جتنے ساتھی سپورٹرز ہیں, جتنے ساتھی یوٹیوبرز ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ چیز کی آپ نے غلط کی. اور اگر آپ میرے اس بات کو غلط کہنے پر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو میں جا کے ہم اس کو کلیم کریں گے, تو بالکل شوق سے کیجئے. میں بھی یہیں پر ہوں, میں ابھی بھی دوبارہ کہوں گی کہ آپ نے غلط کیا, آپ نے ایتھیکلی مورلی غلط کیا. جو بیٹیوں والے حضرات ہیں وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا یہ بات صحیح کی انہوں نے. تو آپ بے شک بیٹھ کر آپ دیکھیں, جب کسی یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے آپ یہ کہتے ہیں نا, تو آپ اس اینکر کو تو وقتی طور پر آپ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی تم تو اس طرح نہ بولنا کیونکہ میں ایکشن لوں گا. لیکن ہم جب ہم اس چینل کو میں نے کھڑا کیا ہے ماشاءاللہ, اور میں کرائم سٹوریز کرتی ہوں, تو ہم حق بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور سچ کے لیے اگر کوئی مشکل بھی آئے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. الحمدللہ قانون کچھ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو آگے جناب میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس وقت کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نہ دعا زہرا کی کوئی ایسی دوست ہے, نہ دعا زہرا کی ایسی کوئی ٹیچر ہے, نہ ہی کوئی پھپھی ہے, کاظمی صاحب اکلوتے بیٹے ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسی اور جو لوگ آ رہے ہیں سامنے, بلکہ دعا زہرا کے گھر کے نیچے جو ان کے نیبر رہتے ہیں, جو عرصے سے وہاں پر رہتے ہیں, جب دعا زہرا بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, ان کا ایک یوٹیوبر نے انٹرویو کیا, انہوں نے بتایا کہ دعا زہرا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, میں تب سے یہاں پر ہوں, اور میں دعا زہرا کو جانتی ہوں. وہ لوگوں کے گھر زیادہ آتی جاتی نہیں تھی, اپنے گھر میں ہی زیادہ رہتی تھی, یا اپنی نانی کے گھر. یہ دو جگہیں تھیں جہاں پہ یہ بچی جاتی تھیں. نہ اس کی زیادہ دوستیاں تھیں. ایون انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی نہیں ہے, جبکہ ہم بچپن سے ان کو جانتے ہیں. تو پھر وہ پتہ نہیں کون سی دوستی جو کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے, یا کون سی وہ پھپھی تھی جو کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے انٹرویو دینے کے لیے. تو یہ سب باتیں جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے چینل جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کوئی مستند انفارمیشن دے رہا ہو نا, جو لوگ ہم لوگ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس چیز کو ذرا انڈورس کیا کریں. اب سیکنڈ چیز میں آ جاتی ہوں. دعا زہرا کی والدہ نے کچھ باتیں کی ہیں دعا زہرا کے حوالے سے.
कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी सुन लें जो कहते हैं कि हम तो ख़बर दे रहे हैं, लेकिन ख़बर देने के साथ साथ आप ज़रा ख़बर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ख़बर देते हुए उनके साथ एलिमेंट्स बहुत से जुड़े होते हैं। अब 2000 की वालदा जो है, क्योंकि वालदा और बेटी के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है कि माँ से ज़्यादा बच्ची को कोई नहीं जानता, तो बच्ची माँ के बहुत करीब होती है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरी बेटी का शौक़ था पेंटिंग, हमसे वो जो चीज़ मांगती थी हम उसको ला देते थे। वो पापा से कहती थी कि मुझे दराज से ऑर्डर कर दे या कुछ भी कर दे, तो वो उनको चीज़ मंगा दिया करते थे। इवन उसने अपनी बर्थडे से काफ़ी पहले बिल्ली एक मांगी अपने वालिद से, तो उन्होंने सालिया से काफ़ी पहले ही उसको वो बिल्ली ला के दे दी। उसकी वालदा कहती है कि वो बिल्ली को बाकायदा खुद अपने हाथ से फीड कराती थी और उसके बाद पे वो कोई काम करती थी। उस दिन भी जब वो कचरा डालने गई तो उसने बिल्ली को पहले अपने हाथ से फीड कराया, फीड कराने के बाद उसके बाद वो बाहर गई है कचरा डालने। अच्छा, वो कहती है अगर उसने हमसे कोई ऐसी वैसी चीज़ बोली होती तो हम दिन ज़ाया नहीं करते थे, हम 20 दिन से उसके लिए तड़प रहे हैं। दुआ का इसके अलावा कोई शौक़ नहीं था, पेंटिंग का उसको शौक़ था, ना वो कहीं आती थी ना जाती थी। ये उसके हमसाये ने भी बताया जो उनके एन घर के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। वो कहती है घर पर खेलना, पेंटिंग करना, यही उसका मशगला था। और दुआ की एक छोटी बहन थी, उसको वो बहुत प्यार करती थी, उसको गोद में लेना, उसको फीडर पिलाना, उसके कपड़े चेंज करना, ये उसकी हॉबीज़ थी। अच्छा, अब वो कहती है कि दोपहर 12 बजे का वक्त था। इससे पहले वो कहती है कि दुआ जो है 11 बजे तक छोटी बहन से खेलती रही। छोटी वाली मेरी मोबाइल पर कोको मेलन देखती है तो दुआ उसके साथ बैठी रही, खेलती रही। उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, मैंने दुआ को बोला कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना। अच्छा, माँ के साथ छोटे छोटे कामों में वो हाथ बटाती थी और ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है कि आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को काम कहना कोई बुरी बात है, बल्कि बच्चे जब काम करते हैं तो उन्हें काम करने की आदत होती है, मतलब कभी कभी छोटे छोटे काम उनको कहना। तो वो कहती कि कपड़े प्रेस करने के लिए जब दुआ गई तो साथ में छोटी बहन को भी लेकर गई। अब दुआ कपड़े प्रेस करती रही और इसी दौरान छोटी बहन उससे खेलती रही। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि दुआ ने मुझे कपड़े ला कर दिए और छोटी बहन को भी मेरे हवाले करके कहा कि मामा आप इसे पकड़े, मैं कचरा फेंक कर आती हूँ और बिल्ली को खाना खिला कर आती हूँ। फिर दुआ ने बिल्ली को खाना खिलाया और तकरीबन 1 घंटा इसमें लग गया होगा। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि बिल्ली बहुत छोटी थी, उसे हाथ से खाना खिलाती थी, फिर उसे साफ़ करती। उसके बाद दुआ कचरा रखने गई। साथ वाली बच्चे ने भी दुआ को देखा, एक 18 साल का बच्चा था, उसने भी देखा, एक बच्ची ने भी उसको देखा। दुआ को कचरा रखते देखा गया। पहले दुआ ने एक शॉपर रखा, फिर दूसरा शॉपर रखा। फिर वो कहती है कि 12:30 बजे थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली 1 बजे के करीब मैं उठी और बाहर गई। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि कचरा रखने गई होगी क्योंकि दरवाजे पर एक शॉपर पड़ा हुआ था। फिर जब 15-20 मिनट गुजर गए तो मुझे लगा कि शायद नानों की तरफ चली गई हो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दुआ के वालिद को उठाया और कहा कि ज़हरा अम्मी की तरफ गई है, जाएँ उसे बुला कर ले आएँ। ये दुआ को बुलाने के लिए गए लेकिन वहाँ पर उन्हें दुआ नहीं मिली। फिर मेरे घर वाले, वो कहते हैं कि उनके घर वाले सब दुआ को ढूंढना शुरू हो गए। दुआ कभी भी बाहर कचरा फेंकने नहीं गई थी, हमेशा कचरा हमारी काम वाली फेंकने जाती थी। दुआ कभी कभार बस कचरा गेट पर रख कर आ जाती थी। तो ये सब बातें उसकी वालदा ने बेसिकली शेयर की। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि दुआ के बारे में मेरी जो एक अपनी कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि बहुत सी क्राइम स्टोरीज़ करके बहुत सी चीज़ों के बारे में हम भी अजम्पशंस करते हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या पता लगता है, लेकिन मेरी एक अपनी ये अजम्पशन है क्योंकि दुआ जिस वक्त घर से निकली है तो हमसाए में जो लड़का है उसने ऊपर से देखा दुआ को कि वो आई तो है नीचे। उसके बाद वो आगे किस तरफ गई वो देख नहीं सका क्योंकि आगे छज्जा था, छज्जे से आगे उसको नज़र नहीं आया। अब गली के एंड पे जब दुआ पहुँचती है तो वहाँ पर सामने लेफ़्ट साइड पे एक, यानी कि टी एंड पे पहुंच के लेफ्ट साइड पे एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर जो है वहाँ पे कैमरा लगा है लेकिन उसकी रेंज उस गली तक नहीं थी, इसलिए दिखाई ना दे सका कि दुआ खुद बैठ के गाड़ी में गई या उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया या क्या हुआ। मेरी अजम्पशन कुछ ऐसी है कि यकीनन दुआ ज़हरा की ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू किसी बच्चे से जो भी गुफ्तगू हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने उसको या तो डराया है या उसकी कोई तस्वीर मांग ली होगी या कुछ होगा, कोई ब्लैकमेल उसको करा हो सकता है, जिस पर उसको कहा गया हो कि तुम इधर आना, हम तुमसे बात करेंगे। जब वो वहाँ पहुँची हो तो उसके बाद उसको मज़ीद डराया धमकाया गया हो, शायद कुछ और दिखाकर, और वहाँ से वो जाने पर उनके साथ मजबूर हुई कि शायद कोई बात कर ले या उसे ज़बरदस्ती बिठाया गया, कुछ इस तरह का मामला हुआ है। और उसके बाद जब बच्ची अपने काबू में आ गई तो उसे इस कदर डराया गया कि अब वो वही ज़ुबान बोल रही है क्योंकि उसको लगता है कि अब वापसी का शायद कोई रास्ता नहीं रहा। हो सकता है बच्ची से कोई छोटी सी मिस्टेक हुई हो, लेकिन एक बच्चा जो है वो जल्दी घबरा जाता है, उसको डराना धमकाना आसान होता है, तो उसको डरा धमका कर अब मज़ीद उसको अपने साथ किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त दुआ ज़हरा का कोई नहीं पता कि वो कहाँ पर है। दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 19 इस महीने की 19 तारीख को बुलाया गया है, कराची से पेश होना है, लेकिन
अब 2 हज़ारा अपने मुबैना शौहर मैं कहूँगी, बल्कि वो लड़का मैं शौहर तो कहूँगी नहीं उसे, उसके साथ वो वहाँ पर पेश होती है कि नहीं होती है, उसके बाद मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सामने आएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अब ये बच्चे जो हैं ये रुपोश हो जाएंगे। तो मामला अभी किस तरफ जाके बैठता है मैं मज़ीद भी आपको तफसीलात दूँगी, लेकिन उन तमाम लोगों को मेरा एक बार फिर से जवाब है कि जो सोचे समझे बगैर यूट्यूबर्स मैं ये बात आज करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए की कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिसने भी ये बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बहुत ही चीज़ों को जानने के परखने के बाद उस पर बात करती हूँ। एथिकली मॉरली मैं क्या समझती हूँ वो एक और बात है, लेकिन खबर क्या है वो भी एक और बात है। एंड आई टोटली स्टैंड विद इट कि इस बच्ची को वर्गलाया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है। इतने से बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती है, जिस तरह से नाजों से वो पली हुई है, इस तरह की बच्ची इस तरह की एफर्ट जो है वो नहीं कर सकती। बच्ची की नानी ने भी कुछ बातें की, जाते जाते थोड़ी सी वो बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको 2 हज़ारा के बारे में पता लगे, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी, कहीं जाती नहीं थी, उसकी कोई सहेली नहीं थी, ना किसी के घर उसका आना जाना था। और जहाँ तक बाप के बारे में कहा जा रहा है वो मारता था, ये बिल्कुल गलत है। इसकी नानी अब कह रही है, नानी जिनके पास ये बच्ची बहुत आती थी जाती थी, वो कहती है वो तो इतनी नाजों से पली, वो तो खाना भी खुद नहीं खाती थी। हम परेशान हो जाते हैं कि वो लोग इसको क्या खिलाते होंगे। वो कभी चिप्स खा लेती थी, कभी नूडल्स, ज़बरदस्ती माँ बाप को साथ बैठ कर उसको खाना खिलाना पड़ता था। पहली बच्ची थी, बहुत लाडली थी, उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता था, और कहीं आने जाने की अलबत्ता उसको इजाज़त नहीं थी। स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, हमसायों के साथ भी उसका ज़्यादा मेल जोल नहीं था, हालांकि उनकी बच्चियाँ भी थीं, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं उसकी सहेली कहाँ, कराची से लाहौर पहुँच के जाके इंटरव्यू दे रही है, फिर उसके बाद वो नहीं मिली। पता नहीं ज़मीन निकल गई आसमान, एक सेकंड में क्या से क्या हो गया। बच्ची तो मेरे घर में ज़्यादा नहीं बैठती थी, यही कहती थी अम्मी घर में अकेली है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। दुआ की माँ जो है उन्होंने कहा कि एंजाइटी की मरीज़ थी, इस वजह से वो जल्द अज जल्द अपनी वालदा के पास जाने की कोशिश करती थी। अच्छा, इसकी नानी ने कहा कि इसके बाप की वफ़ात के बाद उसे थायराइड हो गया था, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी थी इसकी वालदा को, तो डेली इस्तेमाल करती थी। अभी तक वो बाप का गम नहीं भूली थी, और अब एक बेटी का गम भी उनको लग गया है। और वो कहती हैं कि जब सालगिरह करीब आ रही थी तो नानों ने उसकी कहा कि मैं तुम्हें क्या लेकर दूँ। उसने कहा मुझे कपड़े लेकर दे। फिर वो कहती है कि हमारी रमज़ान जो है वो इबादत हमारी ख़राब हो गई, हम कुछ भी ना कर सके, हम बस उसको याद करते हैं। दुआ अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसे दूध पिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, और यही सब कुछ करती रहती थी। हम सब चाहते हैं कि उससे ज़िंदा सलामत हमें मिले, और जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया उन्हें अल्लाह इबरतनाक सज़ा दे। देखिए कितने लोगों की बदुआएँ आप माँ बाप की लेते हैं। दुआ के वालिदैन जो है उनकी शादी को 17 साल हो गए, लेकिन 18 साल बताया जाता है। ये सब कुछ दुआ की नानी ने कहा। तो ये तमाम बातें हैं जो उसकी नानी और वालदा की मैंने आप तक पहुंचाई। खुद आप बेहतर जज कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।